पक्षवाह वालों के पक्षवाह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अविलंब लोकमत के विषय। Thank you, Speaker, sir. Sir, early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. प्रश्न नंबर 1। ये आप हर घटना दुखद घटना है, उस पर राजनीति करने लग जाओ, ये ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री मेरा उन्होंने नोट कर लिया, विषय ध्यान में आ गया। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल बोलना चाहते हैं आप? हरसिमरत कौर बादल। शुक्रिया सर। समय एक बहुत जरूरी किरण रिजिजू जी, प्लीज बैठिए। ये सर, एक मिनट बैठिए। किसी घटना दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है, भविष्य में घटना न उसके उपाय के लिए चर्चा हुई, आप उसमें भी राजनीति करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष जी, मेरे संज्ञान में आ गया, सदन के संज्ञान में आ गया। सर, जैसा आपने कहा, कोई भी प्राकृतिक आपदा वो देश के लिए और सबके लिए बहुत ही गंभीर मसला होते हैं। So all the natural calamity is not only for Kerala but for everyone, it's a concern. Early morning, Honorable Prime Minister has sent the MOS, the minister who comes from Kerala, early morning, and he is already there coordinating with the agencies. Honorable Prime Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala, and the rescue and relief operation is already on. The matter raised by honorable members, including the leader of opposition and other members, sir, आपके अनुभूति से जैसे चाहते हैं हम लोग इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन हम सदन में रख देंगे। ओके, हरसिमरत कौर बादल। शुक्रिया सर। सर, मैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा चकना चाहती है पंजाब के शैलर मिलर्स के किसानां बारे, जिथे नवा पैडी सीजन 2-3 महीनों से शुरू हो जाऊगा तो नवा झोना गोडाउना च पहुँच जाऊगा, लेकिन 2023-24 की जिहड़ी पैडी सीगी वो अजे भी गोडाउन तक नहीं पहुँच सकी है, क्योंकि FCI ने गोडाउन खाली नहीं कराए ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेक्स भेज के वो FCI के गोडाउन खाली नहीं कराए, जिहदे करके राइस मिलना नूं जिहड़े तकरीबन 5-6 हज़ार पंजाब च हैगे, पंजाब दी किसानी दी ते इंडस्ट्री दी बैकबोन है, ये बहुत वड्डे संकट विच ने ते बहुत वड्डा इन्हां नूं आर्थिक नुकसान हो रहा। कई तो बैंकरप्ट होकर बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि स्टेट दी सरकार ने उन्हां दी पॉलिसीज करके इन्हां ने पहले शॉर्ट टर्म वैरायटी झोने दी लाती, जे शॉर्ट टर्म वैरायटी मान्य कोई भी मान्य सदस्य, आप बहुत तीखा बोलती है, कोई भी दल की सरकार हो, उचित नहीं है। ठीक है, सब लेती हूँ। सरकार की अनगहलियां करके किसान और राइस मिलर्स का नुकसान हो रहा है सर। जो पॉलिसी सरकार को बना के मिलिंग नवंबर में शुरू होनी चाहिए थी, इनकी अनगहलियां करके सरकार की
और वो मिड जनवरी में हुई है, जिस करके मार्च तक पूरी मिलिंग कंप्लीट नहीं हो सकी। और अब जो लास्ट डेट 31 जुलाई का है, मैं सरकार को बेनती करती हूँ, क्योंकि पिछला स्टॉक अजे क्लियर नहीं होया, FCI के कोल गोडाउन 'ਚ जगह नहीं हैगी, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਬੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ 67 kg ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਿਰਫ 62 ਜਾਂ 64 kg ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੇਕਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, FCI ਦੇ ਗੋਡਾਊਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਸਰ। ਸੋ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 2.5% ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर ओके Sir, I also given an adjournment notice regarding the Wayanad disaster. Just one word about that. Sir, it should be announced as a national disaster, and honorable central ministers like Honorable Amit Shah ji and अब आप विषय मत उठाइए, आपके नेता ने उठाते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं इस विषय should go there and for monitoring the entire aspects of the disaster आप management, sir. अपनी- Sir, I am अपना विषय खत्म also करिए आप। representing the similar constituency, Idiki. Sir, one man has No. died yesterday in heavy disaster. क्यों- Sir, वर्षा एकनाथ sir, नो, sir. गलत तरीका है आपका, नहीं बोलने देंगे आपको, नहीं बोलने देंगे। वर्षा एकनाथ नहीं, नो। हाँ, आप मेरी बात करिए, ऐसे नहीं चलेगा। वर्षा एकनाथ, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, जिनकी जयंती 1 अगस्त को है, उनके जयंती के अवसर पे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं देशाच्या सर्वोच्च नागरिक अर्थात जो सगळ्यात महत्त्वाचा पुरस्कार आहे भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा अशी मी या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आप आपके पहले चुने हुए सदस्य को नहीं बोलने देना चाहते, आपके दल की सदस्य अशी मी सन्मान्य अध्यक्ष वर्षा महोदय एकनाथ खड़गे का रिकॉर्ड होगा। बोलिए सर जगह बदलूनी बोलिए, सर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आया वो उसके अलावा नहीं, प्लीज। बोल अरे चालू ठेव मेरे को बोलना नहीं, ऐसे कैसे बोलूं मैं, जाने का नहीं आवाज। सर मैं वापस से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि मेरा आवाज ही नहीं गया सर आप तक। सर साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी की जयंती जो है वो 1 अगस्त को है, तो मैं यहाँ से मांगनी करना चाहती एक हूँ मिनट बैठिए, कि देशाच्या एक मिनट बैठिए, सर्वोच्च एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, 1 मिनट में दोबारा बुलाऊंगा आपको। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, आप भी बैठिए। एक तो शून्यकाल के अंदर मैं आज व्यवस्था दे रहा हूं कि शून्यकाल के अंदर जिस विषय पर शून्यकाल आपने लिखा है उस विषय के अलावा नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलना है तो मेरी परमिशन लीजिए, मैं परमिशन दूंगा तो बोल सकते हैं। नंबर 2, मैं आपको दूंगा मौका, मैं आपको मौका दूंगा, मैंने कह दिया ना आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा मौका, मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको दे दिया मौका दूंगा आपको। दूसरा विषय नहीं, अभी दे रहे हैं, अभी मौका दे रहे हैं, आप विराजे। दूसरा विषय, शून्यकाल में जब नए सदस्य भी आए, शून्यकाल में जब विषय लिखें तो पूरा क्लियर विषय लिखें, स्पष्ट लिखें। आपने एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने पूरे विषय को ठीक से नहीं लिखा था। आप वरिष्ठ सदस्य हो गए, दूसरी बार के सदस्य हो गए, आप सब्जेक्ट को पूरा लिखे। मेरे पास सजावट पटल के आया था कि सूचना स्पष्ट नहीं है, अलाउ नहीं किया, तो भी मैंने अलाउ किया आपको, लेकिन विषय स्पष्ट रखें। ये 2 व्यवस्था है, हमेशा लागू रहेगी। पहले वर्षा एकनाथ खड़गे। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जी की जो जयंती है वो 1 अगस्त को है,
उसके अवसर पे त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान अर्थातच भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी मी या ठिकाणी मागणी करत आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जग बदल घालून घावं आम्हा सांगून गेले भीमराव. उभे आयुष्य ज्यांनी मानवतेसाठी व शोषण मुक्तीसाठी समर्पित केले, साहित्य सम्राट महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या वास्तवदर्शी साहित्यातून माणूस आणि मानवी वृत्तीचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय दर्शन घडवले आहे. शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रभावित अण्णाभाऊ साठेंनी आपल्या लेखणीतून दीनदुबळ्यांची, उपेक्षितांची, कष्टकऱ्यांची, पीडितांची हाल अपेक्षा वेदनाची जाण समाजाला करून दिलेली आहे. सामाजिक न्यायाचे, बंधुत्वाचे आणि समतेचे विचार समाजात रुजवत अण्णाभाऊंचे लेखन हे सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम आहे. आज जेवढी प्रभावशाली आणि उपयुक्त त्यांचं साहित्य आहे. प्लीज. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मला थोडक्यात बोलू द्या. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 कादंबऱ्या, 10 लोकनाट्य, 24 लघुकथा, 10 पोवाडे, 1 नाट्य, छक्कड व 1 प्रवास वर्णन असे त्यांनी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये लेखन केलेले आहे. संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला सांगू इच्छिते की त्यांनी जे योगदान केलेलं आहे ते खूप असं अमूल्य असं योगदान आहे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अण्णाभाऊ साठेंनी फकीरा या कादंबरीला महाराष्ट्र राज्याने सुद्धा पुरस्कार दिलेला आहे. आणि म्हणून माझा रशिया प्रवास वर्णनात त्यांनी रशियातील समाजवाद व्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे. त्यांच्या सामाजिक न्यायाचं कौतुक जितकं करावं तेवढं कमी आहे. साठे यांच्या या कादंबरीतून महिलांचे सक्षमीकरणाचा विषय हाताळलाय. त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यांना या ठिकाणी जो आहे तो देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार अर्थात भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला विनंती करते. सामाजिक क्षेत्रामध्ये आणि लोक चळवळीमध्ये आणि शोषकांचा आवाज उचलण्याचं त्यांनी काम केले. धन्यवाद सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. मैं फिर माननीय सदस्यों को, वैसे आप पहली बार के सदस्य हैं, अपना विषय ओरिएंटेशन कर दें, अपना विषय संक्षिप्त में कह दें. शून्यकाल के अंदर जो आप लिख के आए पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. दूसरा, नो एक मिनट प्लीज, बहुत संवेदनशील है. चीन ने ब्रिज बनाया है पैंगोंग के ऊपर. अध्यक्ष जी, 2 मिनट का समय तो दीजिए. राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है. मैं वैसे समय नहीं मांगता, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है. अध्यक्ष जी, परिस्थिति संवेदनशील है. माननीय सदस्य प्लीज, आप वरिष्ठ सदस्य प्लीज, आप वरिष्ठ सदस्य प्लीज. अध्यक्ष जी, 2 मिनट का समय तो दीजिए. मैंने adjournment motion दिया है अध्यक्ष जी. संवेदनशील परिस्थिति है. एक प्लीज उनकी व्यवस्था दे दूं. मैं पहले नियम के तहत उनकी व्यवस्था दे दूं. क्यों वकील है, एडवोकेट है, उनको व्यवस्था देनी पड़ती है. आप उनकी व्यवस्था देनी पड़ती है. एडवोकेट मनीष तिवारी जी सीनियर एडवोकेट है, उनको व्यवस्था देनी पड़ती है. 1 मिनट. मैंने जब स्थगन प्रस्ताव पर कोई व्यवस्था दे दी है तो आप सीनियर एडवोकेट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सीनियर है, तो मैंने व्यवस्था दे दी है कि स्थगन की किसी भी प्रस्ताव को, सूचना को अनुमति नहीं दी गई है. ये मैंने व्यवस्था दे दी है. आप अपनी रिक्वेस्ट मुझसे कर सकते हैं, मैं विषय को देखूंगा. देखो ठीक है. एडवोकेट डीन कुरियाकोस और शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता. सीनियर एडवोकेट हो आप. सर बढ़ती मेहताब जी, जरा इनको बता दो कि शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है. Idiki, very similar to Wayanad. One person already been died yesterday in heavy rain. That's why I mentioned Wayanad case also in the 0 hour. I already given adjournment motion also. No. Sir, my 0 hour submission is it's regarding NH85 bypasses Movattuvada and Kodamangalam in NH85. Sir, 3A been published in last December, and this is the time for publication of 3D. This is a high time to publish 3D. Otherwise, this project will be lapsed. So I object on the government, honorable minister for more, that means our Nitin Gadkari ji, 3D must be published very early, otherwise this project will be lapsed. Thank you, sir. अध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुन कर लीजिए 1 मिनट. बहुत जरूरी है. नहीं, उससे संबंध मेरे 0 आर से संबंधित नहीं है और जजमेंट से संबंधित नहीं है. अच्छा, एक मिनट, एक इस पर डिबेट हो जाए हल्की सी. अच्छा, बढ़ती मेहताब जी, जरा
एक मिनट बताइए, एडिशनल देखिए आया। मैंने मैंने तो जो नियम पढ़े हैं उसके तहत तो शून्यकाल के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। आपका क्या सुझाव इस मामले में? आप बैठ जाइए, आपको नहीं है, फिर सोगत राय जी से पूछेंगे। Sir, respected member Manish Tiwari ji is very much aware that there is no point of order during 0 hour when matters of urgent public interest is being raised. But the matter may be important, which can be considered by you, by the chair, provided it is brought to your notice at an early time. सोगत राय जी, आपका क्या कहना है इस विषय पे, विषय पर, व्यवस्था के सर, विषय मुझे एक ही बात बोलना था। हम जब वेस्ट बंगाल असेंबली में थे, हमारा वहाँ एक तो व्यवस्था था कि जो एडजॉर्नमेंट मोशन देते हैं उनको नाम बोल के उनको एडजॉर्नमेंट मोशन पढ़ने दिया जाता है। मेरे सवाल आपको बताए, सुनिए ना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर शून्यकाल पे लागू करते हैं क्या? पॉइंट एडजॉर्नमेंट मोशन इज गिवन अंडर रूल 56. नाउ यू डोंट अलाउ, इफ यू अलाउ देन you ask the members to stand up, but हर विधानसभा at least सुने ना, मैं जो सवाल पूछा थोड़ा आपका उसका जवाब धीरज दो। रखिए सर, थोड़ा at least you allow the member who has given announce his name, let him read the substance of the adjournment motion, then you will sit down. If you are not allowing, आप बोलते हैं मुझे कोई स्थगन प्रस्ताव मिला है, हम किसी को अनुमति नहीं दिया है। कौन स्थगन प्रस्ताव दिया, वो कष्ट करके सुबह भेजता है, वो तो पता करे, तो आप इसको मौका दीजिए ना। स्थगन प्रस्ताव पढ़े, मैंने जो सवाल उसको डिसमिस कर, मैं आपसे नहीं, एक कुछ हुआ था क्वेश्चन उसके ऊपर मेरा आप लिख के दो, लिख के दो, लिख के। आप अगर मेरे को 1 मिनट अलाउ करेंगे तो मेरी आप लिख के दीजिए, मैं देखता हूँ। आप लिख It's a very serious point of order, sir. A reference was made to a cabinet note. A reference was made to a cabinet. आप एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप तो ये बताइए कि शून्यकाल में क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? एक लाइन में जवाब दीजिए। सर, शून्यकाल में आप किताब देखिए, किताब में कहीं भी शून्यकाल ये मेंशन नहीं है। ये आप देते हैं शून्यकाल आपके कृपा से। मैं कहता हूँ जब हाउस चलता है कोई भी टाइम पे कोई भी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं, क्यों नहीं चलेगा, कभी भी चल सकता है। एक आपने कहा कि पश्चिम बंगाल की व्यवस्था है, मैं इतनी जानकारी दे दूं, मैं स्पीकर कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन भी हूं। हर विधानसभा के अपनी नियम प्रक्रिया होती है, उसमें स्वायत्तता होती है। लोकसभा के अपने नियम प्रक्रिया होते हैं, इसलिए इसलिए हमारी लोकसभा की नियम प्रक्रिया और कई परंपराओं से भी चलते हैं। इसलिए श्रेष्ठ परंपरा है ये शून्यकाल की, इस परंपरा को चलते हैं। आपने कहा जो व्यवस्था दिनेश चंद्र यादव नहीं करता है क्वेश्चन आवर में। अध्यक्ष मेरी 1 मिनट बात तो सुन लीजिए, बहुत संवेदनशील है। अरे हो गया, दूसरे को भी बोलने दीजिए। आप तो बोलना सुन दिनेश। अध्यक्ष महोदय, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन में मेमो शेड नहीं है, जिससे इस क्षेत्र में चलने वाली मेमो ट्रेन का रैक मेंटेनेंस के लिए सोनपुर मेमो शेड भेजा जाता है। सोनपुर मेमो शेड में अत्यधिक मेमो ट्रेन जाने के कारण मेंटेनेंस का कार्य ठीक से नहीं हो पाता। जानकारी मिली है कि 125 करोड़ रुपये की लागत से मेरे संसदीय क्षेत्र सहरसा में मेमो शेड निर्माण के लिए मुख्यालय से मार्च 24 में प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। अति शीघ्र मेमो शेड का निर्माण नहीं होगा तो सहरसा, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, रक्सौल, बरौनी, खगड़िया, कटिहार, मानसी, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, नरकटियागंज, सीतामढ़ी क्षेत्र में चलने वाली मेमो ट्रेन के मेंटेनेंस में भारी दिक्कत आ सकती है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि सहरसा या मधेपुरा, जहां अनुपयोगी स्लीपर फैक्ट्री की ज़मीन है, या बुधमा में मेमो शेड का निर्माण कराने की कृपा करें। ओके मैम। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I received one information from my Chief Minister in the morning that Mumbai-Howrah Mail, train number 12810,
has facing a derailed condition and 4 persons have died at 3:43 a.m. That was too early time. I was keen to know from the Honorable Railway Minister that what is the latest position, because safety in the railways has now become a challenge. Every day accident is taking place. I chaired the chairmanship of Railway Standing Committee last few years. Again and again we mentioned that railways should be given safety first, but now it is happening regularly. Why not Railway Minister is coming to the house KC and Venugopal submitting a report to us? Sir, thank you very much, sir, for giving me an opportunity to raise one of the most important issues relating to my state and my constituency, sir. Sir, in many parts of Kerala, this national highway widening construction is going on. But everywhere, the common people are suffering in a bigger level. For example, in my constituency, this national highway construction is virtually dividing the important towns like Kayankulam, Ambalappuzha, Karunagapalli. Kayankulam is one of the historic cities. That city itself is dividing because of this national highway construction. There is no much better design for these people. So for we, the people representative of the state, requested them at least to have a design to protect the major cities. Honorable Minister is very liberal to see these things. He instructed the officers, but nothing is happening, sir. Sir, on the other hand, on one area, Arur to Thoravur, big national highway flyover is constructing. This is one of the lifeline of the Kerala traffic, this land. Today the people are doing a human chain. There is no parallel road, sir. There is no diversionary routes. People are dying due to the accident every day. 21 people died. We are the government to take measures. Whenever you are doing the construction, at least a parallel road should be constructed, sir. Otherwise, how can people travel? So many patients are there. Sir, 1 minute, sir, 1 minute. So many patients has to reach. Virender Singh. They are not in a position to reach. Therefore, एक मिनट में अपनी बात को खत्म करें। घड़ी देख ले और आप खड़े हो जाए, टोकना नहीं पड़े किसी को। मैं वाराणसी जनपद से आता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र चंदौली है। मैं अपने को और अपने वहां के लोग भाग्यशाली समझते थे कि वाराणसी जनपद का हमारा सांसद सदस्य इस देश का प्रधानमंत्री है। और विकास की अपना विषय रखिए। विषय ही रख रहे हैं सर। हाँ। विकास का कुछ भाग हम लोगों को भी मिलेगा, लेकिन निराशा तब होती है कि अधिकारी आज भी सत्ता के नशे में वहां चूर हैं और कोई भी मीटिंग हो, कोई भी योजनाएं अगर वहां की बैठक होती है न उसकी सूचना आती है, न ही उसका जो कार्रवाई होती है उसके बारे में बताया जाता है। उसका दुष्परिणाम यह है कि जैसे किसानों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर हम लोग फोन करते हैं तो सिंचाई विभाग टाल देता है, बिजली विभाग राज्य के विषय बिजली विभाग टाल देता है वहाँ। क्वेश्चन नंबर सर, मेरा निवेदन सुन तो लीजिए। मेरा निवेदन यह है कि आपके तरफ से एक एडवाइजरी जानी चाहिए कि मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि भी हूँ, मैंने भी संविधान की कसम खाई है, मुझसे कौन सी गोपनीयता भंग होती है जो मुझे मीटिंग में की सूचना नहीं जाती है और मुझे बुला नहीं जाता। अभी एक घटना सर सुन लीजिए सर, वहाँ चिन्हित करके वणक्कम निवेदन அவைத்தலைவர் அவர்களே வணக்கம். திண்டிவனம் நகரி ரயில் பாதை 2010 ஆண்டு காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே அந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த திட்டத்துக்காக 600 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அங்கே தமிழக அரசின் சார்பாக அந்த நிலங்களை எல்லாம் கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நிலங்களை எல்லாம் கையகப்படுத்த 198 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அந்த திட்டம் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த 14 ஆண்டுகளாக அந்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தவில்லை. ஒரு 6-7 பாலங்கள் மட்டும், ரயில்வே பாலங்கள் மட்டும் கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு 70 விழுக்காடு. அங்கே நிலம் கொடுத்தவர்கள் எல்லாம் ரயிலும் வராமல் விவசாய நிலங்களும் ரயில் பாதைக்கு கொடுத்துவிட்டு விவசாயம் செய்ய முடியாமல் ஒரு அவலநிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது
நீங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, கிராமப்புறங்களில் சொல்லுவார்கள், அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்ட கதையாக விவசாயிகள் எல்லாம் ரயில் பாதை வரும் என்று நிலத்தை கொடுத்துவிட்டு ரயிலும் வரவில்லை, நிலமும் விவசாயம் நடைபெறாமல் அங்கே கிடப்பில் கிடக்கிறது நிலைமை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுபோல பாமினி எக்ஸ்பிரஸ் என்பது ஆரணி வழியாக ராமேஸ்வரம் திருப்பதி, மன்னார்குடி திருப்பதி என்ற ரயில்கள், ஆரணி என்பது பட்டினசவிலே அரிசி உற்பத்தியிலே சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. போலூர் அந்த பகுதியிலே வழியாக அந்த ரயில்கள் செல்கின்றது. அந்த பகுதியில் அந்த ரயில்களை நிறுத்தி செல்ல வேண்டும் என்பதை நான் கோரிக்கையாக செய்ய வைக்கின்றேன். அதுபோல செஞ்சிக்கோட்டை என்பது ராஜா ஆண்ட ஒரு பகுதி. அந்த செஞ்சிக்கோட்டையிலே 2 ராஜா கோட்டை, ராணி கோட்டை கோட்டைகள் இருக்கிறது. आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही अविलंबनी लोक महत्व के विषय पर बोलने के लिए समय दिया है। मान्यवर, उत्तराखंड राज्य एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है। बाढ़ इत्यादि भूस्खलन तो होता ही है, परंतु वनाग्नि ने इस बार काफ़ी तबाही मचा दी और बार बार ऐसी स्थिति वहाँ पर आ रही है। मान्यवर, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अल्मोड़ा ज़िले के वन्यजीव अभयारण्य में 5 हमारे कर्मचारियों ने जान गंवा दी है और इससे पहले नैनीताल समेत हमारे दोनों रीजन में कहीं न कहीं अग्नि आई। मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया। मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि तत्काल हमको एक विशेष पैकेज देना चाहिए जिससे कि अग्निशमक यंत्र और वहाँ पर अन्य कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट हो सके ताकि ऐसी बीभत्स घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं दोबारा ना हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय दरोगा प्रसाद सरोज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके अनुमति से केवल 2 सवाल करूंगा, अगर अनुमति देंगे तो। मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज, प्रश्नकाल में सवाल होता है, शून्यकाल में सवाल नहीं होता, शून्यकाल में विषय रखते हैं। सर लालगंज लोकसभा जौनपुर से हो करके एक सड़क गुजरती है आजमगढ़ को जोड़ते हुए, उस पर टोल प्लाजा लगाया गया फर्जी, जबकि उसका उपयोग नहीं किया जाता है। NHI दूसरी है और ये सड़क दूसरी है। केवल बाध्य किया जाता है कि आप टोल प्लाजा दो, जबकि 15 किलोमीटर दूर है वो। और एक जो है सड़क जा रही लिंक रोड है, मजबूर किया जा रहा है कि नहीं आप वहीं जा करके टैक्स देते तब गुजरिए। सरायमीर होते हुए, फरिया होते हुए, फूलपुर, निजामाबाद 4 विधानसभाएं हैं सर। बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती, बस आएगी तो उनको टोल प्लाजा देगी, टैक्स देगी। मैं चाहूँगा आपके आदेश से, आपकी अनुमति हो, मैं चाहूँगा सदन के माध्यम से कि वो टोल प्लाजा वहाँ से या तो दूर किया जाए या तो NHI पर किया जाए और वह जो बैरियर लगा हुआ है उसको हटवा दिया जाए। यही आपसे कृपा है। श्रीमती लवली आनंद। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक बहुत दुखद विषय जो है बस दुर्घटना हुआ था उन्नाव में, उस संबंध में मैं बोलने जा रही हूँ कि ये जो दुखद घटना हुआ है ये हमारे संसदीय क्षेत्र शिवहर से बस आ रही थी दिल्ली के लिए, जो उन्नाव में लखनऊ हाईवे पे, आगरा लखनऊ हाईवे पे एक ट्रक से टकरा करके दुखद घटना का शिकार हुए। 9 जुलाई की घटना है, 10 को ये घटना हुआ, 9 को चली है और उसमें 18 लोग शिवहर लोकसभा के मारे गए, जिसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी हैं। और जिसमें जैसे ही हम लोग को ये खबर मिला, हम तुरंत गए, परिजन से मिलके जो भी हुआ प्रयास किए और आनंद मोहन जी पूर्व सांसद शिवहर से वो उन्नाव जा कर के वहाँ पर भी काफ़ी वहाँ पर किए सेवा भाव से जो भी हो सका। आपका विषय क्या है? क्या मेरा ये कहना है कि जैसे कि इसमें तो राज्य सरकार, जैसे यूपी के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों, माननीय मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए दिए, तो बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो परिजन को अभी भी, क्योंकि जो
गुजर गए हैं, वो एकलौता थे कोई परिवार में, तो उनको 4-4 लाख केंद्र के तरफ से मिले और जो इलाज के लिए उचित इलाज वो सबको मिले। और खंडारा ये जो बस है इसको माननीय महोदय ये बंद किया जाए और रेल परियोजना जो शिवहर में लंबित है, अगर ये रेल परियोजना चालू हो तो वो जल्दी से जल्दी चालू हो, ताकि वो जीवन जो है अपने में लोग नहीं दे करके एक ड्राइवर के भरोसे हजारों किलोमीटर दे करके संजय बीना पाटिल, इसको रोक हो, यही मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, आपण मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपला मनापासून आभारी आहे। मी माझ्या ईशान्य मुंबईच्या जनतेची मनापासून आभार मानतो की त्यांनी मला परत एकदा या इथे प्रतिनिधित्व करायचा मौका दिला। मी एक महत्त्वाच्या विषयावर आपल्या माध्यमातून सरकारचं लक्ष आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत। धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हा मुंबईमध्ये होत आहे आणि त्याच्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघातले जे सॉल्ट लँड आहे, सॉल्ट लँड होते ते आता वेटलँड आहेत, कन्वर्ट केले आहेत त्यांनी, पण ते 250 एकर सॉल्ट लँड धारावी प्रोजेक्टसाठी मागतात आहे आणि महानगरपालिकेचे 75 एकर मागतात आहे। माझी विनंती आपल्याला काही न दिले जाय, कारण ह्यामुळे हे जर दिले, इथे जर डेव्हलपमेंट झालं, इथे जर कन्स्ट्रक्शन झालं तर त्याच्यामुळे पूर्ण इकॉलॉजिकल त्रास होईल आणि पर्यावरणाला त्रास होईल आणि जर हे वापरायचं जरी असेल तर माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांसाठी जे गरजेचे गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी वापरला जाय। कृपा करून मी हात जोडून विनंती करतो आपल्याला, ही जागा आपण एका बिझनेस हाऊसला देऊ नका अशी आपल्याला हात जोडून विनंती करतो। याच्यामुळे आम्हाला खूप त्रास होईल, आमच्या लोकांना, माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांना खूप त्रास होईल। धन्यवाद। जगदीप पाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ कि ये अत्यंत लोक महत्व का विषय है और जो न सत्ता पक्ष का न प्रतिपक्ष बल्कि संपूर्ण सदन के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पूरे देश में लगभग 12,93,448 आंगनबाड़ी की बहनें जो कार्यकर्ती के रूप में रात दिन काम करती हैं और लगभग 11,64,178 सहायिका, और उत्तर प्रदेश में अकेले 1,54,342 कार्यकर्ती हैं और 1,32,671 हमारी सहायिका। और ये इनका काम पहले केवल ये था कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पुष्टाहार या स्कूल जाने के पहले उनके अंदर उन चीज़ों को समझाने की थी, लेकिन आज केंद्र की भी सारी योजनाओं को लागू करती हैं। अभी चुनाव हम लोगों का ख़त्म हुआ, उसमें BLO की भूमिका निभा रही थी, अब वो संचारी रोग है उसमें भी कर रहे हैं, कोविड के दौरान भी। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि न इनको मैटरनिटी बेनिफिट लीव 2017 के तहत प्रधानमंत्री की पहल पे जो 26 सप्ताह लोगों को मिलता है वो भी नहीं मिलता। ये गर्मियों की छुट्टियों में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोलती, इनका मानदेय जैसे उत्तर प्रदेश में 4500, पिछले दिनों हमारी मोदी जी की सरकार ने 1500 बढ़ाया। मैं चाहता हूँ बस केवल मांग आ जाए। हमारी मांग ये है कि पूरे देश की आंगनबाड़ी की बहनों में जो मानदेय एक रूपता हो, उत्तराखंड में 12,000, हमारे यहाँ 4500 प्रोत्साहन और इनको छुट्टियाँ दी जाए और इनको मैटरनिटी लीव के अंतर्गत, और इनको माह में केवल 2 छुट्टियाँ मिलती हैं, वो ग्रीष्मकाल में अवकाश भी दिया जाए। धन्यवाद। जियाउर रहमान। इज़्ज़त माब सदर मोहतरम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं अपनी संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बख्श साहब की सीट पर मुझे एक ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजा है। माननीय सदर मोहतरम, मेरी सबसे बड़ी संभल लोकसभा की जो परेशानी है और जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, वहाँ पर संभल रेलवे गजरौला को जो रेलवे लाइन जुड़नी है वो अभी तक नहीं जुड़ पाई है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपने कारोबार को नहीं कर पा रहे, और जो हमारा संभल पढ़ाई के एजुकेशन के हिसाब से भी पिछड़ा हुआ है, जो अपनी पढ़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, बॉम्बे
रेलवे लाइन नहीं होने की वजह से उनको परेशानी होती है। मेरे दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब ने भी कई बार इस समस्या को उठाया, लेकिन अफसोस है इस पर सिर्फ सर्वे तो कराया गया लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की गई। और सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की होती है कि पिछली सरकार में जो एक जवाब आया था उसमें यह आया कि इस रेलवे संभल से गजौला को जोड़ने के लिए खर्चा ज़्यादा होगा और इसमें आमदनी कम होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार प्राइवेट कंपनी है या जनहित के लिए काम करना चाहती है। ये जनहित का मसला है, खर्चे को नहीं देखा जाए और कि कितने लिए देखा जाए कितने लोगों का कारोबार पढ़ाई लिखाई से लोग जुड़ेंगे। मेरी आपके माध्यम से दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द रेलवे लाइन को संभल से गजौला को जोड़ने का काम करें, जो कि बेपनाह ज़रूरी है। और हमारे संभल के अंदर एक रेल बस चलती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। नजीबाबाद के लिए माननीय अध्यक्ष जी बस आधा मिनट माननीय अध्यक्ष जी, रेल बस चलती थी उसको बंद कर दिया गया। नजीबाबाद के लिए ट्रेन चलती थी उसको बंद कर दिया गया। और उसके साथ साथ एक संभल के लिए सिर्फ बड़ौदा से जो ट्रेन चलती है वो सुबह को 6 बजे आती है और उसका पता नहीं, कोई टाइम नहीं है कब जाती है। मैं संभल के अंदर जो एंड हो जाता है रेलवे लाइन का, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार उसको जनहित में देखते हुए जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करे। आलोक शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुई देश और दुनिया की भीषणतम त्रासदी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भोपाल ही नहीं देश का महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 0 आवर में मुझे लोक महत्व के प्रश्न में बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं भोपाल लोकसभा की 35 लाख जनता की ओर से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात का 1 बज रहा था। हमारा पूरा भोपाल गहरी नींद में सो रहा था। अचानक लोगों को बिस्तर में खांसी चलने लगी, वो तो आंखों में आप तो चलने लगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इसके अंदर हमारे कई हजारों लाखों लोग मौत के आगोश में सोए हुए थे और उस मौत के मंजर को मैंने भी अपने आंखों से देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के सदस्य के रूप में आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि इस भीषणतम त्रासदी को आज लगभग 40 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे मौजूदा जहरीला कचरे का निष्पादन नहीं हो पाया है। आज भी वहाँ कीटनाशक दवाइयाँ बनाने वाली बहुराष्ट्रीय अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कारखाने का 337 मीट्रिक टन कचरा निष्पादन के लिए बचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, पर्यावरण वन जलवायु केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जिनकी अध्यक्षता में गठित ओवरसाइट कमेटी में 126 करोड़ रुपए की धनराशि यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन के लिए मार्च 2023 में उपलब्ध करा दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा समय बीत गया, कचरे का निष्पादन आज तक नहीं हो पाया। भोपाल की जनता ने मुझे सांसद प्रिया सरोज जी, एडवोकेट प्रिया सरोज जी, आप कहना क्या चाहते हैं तो बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि शीघ्र आदरणीय मंत्री जी को ये निर्देश दें कि जब 126 करोड़ रुपए की धनराशि कचरे के निष्पादन के लिए उपलब्ध करा दी है तो वहां के कचरे का शीघ्र अतिशीघ्र निष्पादन होना चाहिए। एडवोकेट प्रिया सरोज। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस सदन में पहली बार बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको मछली शहर की देवतुल्य जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मछली शहर जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ईस्टर्न रेलवे औड़िहार जौनपुर रेल के मार्ग की किलोमीटर 26/9 से 27/0 की ओर LHS के निर्माण कराए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहूँगी, जहां पर स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी समय से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे स्कूल वाहन, गैस वाहन, एम्बुलेंस, शादी विवाह जैसे समस्याओं से जूझित है। LHS न होने के अभाव में लोगों को लंबी दूरी तय करना होता है,
जिससे क्षेत्रवासी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होता है और एडीएम जौनपुर के द्वारा भी अनुरोध किया जा चुका है। सीनियर डिविजनल इंजीनियर वाराणसी तृतीय ईस्टर्न रेलवे द्वारा LHS के निर्माण हेतु 3 करोड़ 53 लाख का खर्चा बताया गया है। बजट के अभाव के LHS का निर्माण कार्य रुका हुआ है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी, कथित रेल खंड पर होने वाले खर्च की स्वीकृति अपने स्तर से देने की कृपा करें। धन्यवाद। CN Annadurai. Thank you, Honorable Speaker, sir. Sathanur Dam on Tenpenna River, also called as Penna River, is one of the major dams in Tamil Nadu. This dam is the main source of drinking water for people of Thiruvannamalai parliamentary constituency. However, the basic problem is its silting since its construction. I request the Honorable Minister for Jal Shakti to instruct the officer concerned to make comprehensive project for desilting of the dam, Sathanur Dam. This will ensure piped safe drinking water supply to all households in my constituency. Thank you, sir. Shri Satpal Brahmachari. Arvind Samant जी. माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दे दिया शून्य प्रहर में। अध्यक्ष जी, आप जानते हो पिछले 10 वर्ष मैं महानगर टेलीफोन निगम और BSNL की सेवाओं के लिए तड़पता रहा, बोलता रहा। अरविंद जी जो है ना, अरविंद जी BSNL और टेलीफोन छोड़ता नहीं, उनका प्रिय सब्जेक्ट है, छोड़ता नहीं मैं, क्योंकि इन्होंने BSNL में लंबे समय तक सर्विस की है। बहुत बहुत आभारी हूँ सर। तो कृतज्ञता का भाव है, वो कृतज्ञता का भाव है। आज थोड़ा सा आशा का किरण देखता है कि ज्योतिरादित्य जी आने के बाद कुछ कदम उठाए। मेरा कंसर्न ये है सर, मैंने प्रधानमंत्री से लेकर सभी को खत चिट्ठियाँ लिखता रहा। अब ऐसी हालत हुई है कि पिछले 2 बजट में सरकार ने प्रावधान किया, प्रावधान करने के बाद पैसा कहाँ गया वो उससे मैं चिंतित हूँ। अभी भी इस बजट में 1 लाख और कुछ करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया है, प्रावधान किया है। तो ये प्रावधान 1.18 लाख करोड़ इतना पैसा प्रावधान दिया है। अब ये स्थिति है कि आज नए जो वापस से सारी निजी कंपनियों ने भाव बढ़ाए तो BSNL की सबको याद आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो याद तो आई मांग की। अब BSNL के बारे में मेरी आपसे मांग है कि 2 तरह की चल रही है। इन्होंने जो स्कीम लाई वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो तकनीकी कर्मचारी घर गए, अब क्या वो क्या होटल है क्या? चद्दर बंदों को कचरा निकालो, टेक्निकल लोग लगते हैं, सेवा कर नहीं पा रहे। तो मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूँ, आज भी आप यहाँ अध्यक्षों में सारे मंत्री परिषद को कहता हूँ, हर एक जन आपके माध्यम से हमें क्या मिलता है? BSNL का ही मोबाइल मिलता है ना, तो चलना तो चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपके माध्यम से सरकार सभी मंत्री BSNL का टेलीफोन इस्तेमाल करें, मोबाइल इस्तेमाल करें, ताकि उनको पता चले कहाँ सेवा मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में नहीं मिल रही है सर, BTS टावर खड़े नहीं कर रहे हैं, इतने पैसे जा आ रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए और जल्द से जल्द BSNL को रिवाइवल किया जाए। सरकार ने प्रावधान किया, मॉनिटरिंग कमेटी की आवश्यकता है, वहाँ कुछ बदलाव आए हैं और चाहते हैं कि BSNL की सेवा लोगों के घर तक पहुँचने वाला एक ही देश में टेलीकॉम सर्विस है, जो धंधे की बात नहीं करता, जो सेवा की बात करता, उसका नाम भारत संचार निगम और कालीचरण मुंडा। तो मैं सोचता हूँ कि आपके माध्यम से सेवा तभी तो मुझे ऐसा अवसर मिले कि इनका दोनों का अभिनंदन करे और सेवाएं अच्छी हुई, ये बताने का अवसर मिले, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद सब। इधर जहाँ वीर बिरसा मुंडा का जन्मभूमि कर्म भूमि है। अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकसभा क्षेत्र खूंटी बाईपास के निर्माण हेतु वर्षों से जनता की मांग है। इससे संबंधित त्वरित कार्रवाई के लिए आग्रह है ताकि खूंटी की जनता को जाम से राहत मिले। खूंटी के शहर में चारों तरफ से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र से बड़े बड़े वाहनों की प्रवेश लगातार होता रहता है। जमशेदपुर, राउरकेला, रांची, चाईबासा आदि शहरों का भारी वाहन
खूंटी के मुख्य सड़क पर प्रवेश की वजह से शहर की सड़कों की स्थिति भयावह हो जाती है और आए दिन दुर्घटनाएं होती है। माननीय मंत्री महोदय, खूंटी बाईपास के निर्माण हेतु त्वरित कार्रवाई का निवेदन है। श्रीमती संगीता कुमार। और सर, और एक बात है सर, कोलेबिरा से मनोहरपुर NH 32 0G। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me the opportunity to raise a matter of urgent public importance regarding establishing a fisheries college in Subarnapur district of my parliamentary constituency. Sir, Subarnapur is situated at the confluence of three rivers, Mahanadi, Tel and Ang. And apart from these, there exist several minor irrigation projects and the Harihar Jor Dam, as well as traditional village ponds. Two of the biggest hatcheries of Odisha are situated in Subarnapur, one in Sonpur town and the other in Binka NAC. A major portion of the district's population comprises of traditional fishermen and boatmen communities such as the Kyot, Kebarta, Dhibar, Tiara and Jhara. The essential requisites for the establishment of a degree college or training institute are abundantly available. Sir, through you, I would like to urge the Honourable Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying for the establishment of a fisheries college in Subarnapur district of Odisha, as it would go a long way in developing the economy of the district and transforming the lives of the local populace. Thank you, sir. Sri Rakibul Hussain. Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me the opportunity for raising a very important, valuable and burning problem of my constituency Dhubri and the problem of whole of Assam. Sir, ये problem है इरोजन का, ये प्रॉब्लम है मिट्टी कटाव का। सर, हम लोग सब जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र असम में है, लेकिन कम आदमी जानते हैं कि ये नदी नहीं है, ये नद है। ब्रह्मपुत्र इज ए मेल रिवर। ब्रह्मा का पुत्र है, इसीलिए बाकी प्रदेशों में जो है वो नदी है और ये नद है। ब्रह्मपुत्र का जो स्वभाव है वो बाकी नदियों से नहीं मिलते हैं, इसीलिए ब्रह्मपुत्र एंड 33 ट्रिब्यूटरीज में ऐसा होता है सर, वहाँ इतना ज़्यादा मिट्टी को निकाल जाती है, 1000-2000 जमीन एक ही बारी में ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाता है। सर, 100 बीघा जमीन का मालिक सर एक ही दिन में रास्ते में आ जाता है, और इसी आदमी को यहाँ दिल्ली में आके किसी लोगों ने घुसपैठिया कह देते हैं, बाहर का आदमी कह देते हैं। इसीलिए माई रिक्वेस्ट इज सर to send a all-party delegation not to see the situation but to see the ground reality of the situation. The last, sir, my request is to the government of Assam, government of India, to send a team to that erosion problem spot, and the problem of flood and erosion as a national problem. I again request you, sir, ये गुजारिश है, हमारा अनुरोध है, please sir, declare the problem of flood and erosion as a problem of national problem, sir. Thank you, sir. धन्यवाद अध्यक्ष साहब। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 0 आवर्स में बोलने का मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में केन वेदांता ऑयल फील्ड द्वारा वहाँ कार्य किया जा रहा है। वहाँ पोल्यूशन को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ केमिकल युक्त गंदा पानी बोरवेल द्वारा ज़मीन के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे आसपास के किसानों के बोरवेल के अंदर गंदा पानी वापस आता है, जिससे किसानों के खेत खराब हो गए हैं और आने वाले समय में उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी गंभीर असर पड़ेगा, और साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक विशेष दल बनाकर इसकी जांच करवाई जाए, ताकि लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कटिहार संसदीय
क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूँ। महोदय, 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने कटिहार को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया था। कटिहार बहुत ही संवेदनशील संसदीय क्षेत्र है। बाढ़ से, कटाव से लगातार वो प्रभावित होता है और हमारे यहाँ कोई दूसरा एक समय था जो कटिहार को उद्योग नगरी के नाम से लोग जानते थे। आज कटिहार में उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं है और इरोजन के कारण जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी ज़मीन लिप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है और हर साल, हर वर्ष बाढ़ का प्रकोप हमारे क्षेत्र में आता है, लेकिन उसका एक समाधान जो प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। तो आपसे यही मेरा निवेदन होगा कि सिंचाई मंत्री इस बात का ध्यान दें और कटिहार को बाढ़ से मुक्त कराने के लिए और कटाव से मुक्त कराने के लिए कोई प्रभावशाली योजना बनाई जाए। हरिभाई चौधरी, थैंक यू। हरिभाई पटेल। सर, आज मुझे 0 आवर्स में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। सबसे पहले कौन बोलेगा? से यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी कब बोले और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं गुजरात मेहसाना की देवतुल्य जनता एवं कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिसकी वजह से सदन में पहली बार जनता की मांग को रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के मेहसाणा शहर में पुलिस मुख्यालय से हाईवे गुरुद्वार तक रेल ओवरब्रिज बनाने की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। मेहसाणा एक बड़ा विकसित शहर है एवं मेहसाणा रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ शहर बसा हुआ है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए पुराने अंडरपास के अंदर से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। मानसून में ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी भराव से रास्ता बंद हो जाता है। उसी समय में हॉस्पिटल एवं स्कूल के बच्चों एवं आम जनता को आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक भी यह देख गया है कि कभी कभी मरीजों को अस्पताल पहुँचाने में बहुत मुश्किल होती है। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त रेल ओवरब्रिज को जल्द से जल्द बनाया जाए। साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि पूर्व में भी समय समय पर इस रेल ओवरब्रिज की मांग